जैसे मैं उसमें हम्म। सीख रहा हूँ, ऐसे हम्म। यूट्यूब पे इधर उधर तो मैंने अकाउंट भी बना रखे हैं, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ और थोड़ी हल्की फुल्की करता हूँ, है ना। कभी लॉस में कभी प्रॉफिट में, ऐसा। तो अभी उसमें एक वो अभी मुकाम नहीं आया, तो वो एक बात सीखना है कि कैसे किया जाए, उसके क्या, यही है हमारा तो ये। मिस्टर अमन, सॉरी, मिस्टर अमन, आप प्लीज बताइए आपका बेसिकली क्या पर्पस है मार्केट में आने का? व्हाई आई एम आस्किंग दिस पर्पस, बिकॉज इट्स वेरी ट्रू एंड वेरी सिंपल। लाइफ में आपने जो सोचा, आप ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, आप यूएस बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपने एक दिन सोचा होगा दैट आई हैव टू गो टू यूएसए, आई हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। somehow सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस उस हिसाब से बदलते हैं, चीजें वैसी होती हैं और आप हो जाते हैं, सडन कुछ भी नहीं होता। एम आई आप राइट? सही। तो So, मार्केट में अगर आप आ रहे हैं, प्रॉपर प्लान है क्या? एक प्लान, जब प्लान होगा, जब टारगेट होगा तो ब्लूप्रिंट होगा, ब्लूप्रिंट होगा, फिर हम उस पर चलेंगे। जब हम उस पर चलेंगे, एक एक बहुत सिंपल सी बात करता हूं, मैं बहुत छोटी सी बात करता हूँ, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा कि वाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा हम एमलेसली नहीं मूव कर सकते। आप सपोज यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप सपोज यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको यहां जाना है। देर आर फोर वेज ऑफ कोर्स फॉर रीचिंग टू दिस पॉइंट, यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन एट ऑल। अगर आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप वहां कभी भी नहीं पहुंचेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। sure. अब इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस डिस्टेंस इज सपोज 100 माइल्स, दिस डिस्टेंस इज 100 माइल्स। क्या होगा? either you will reach in 1 hour, either you will reach in 4 hours, either you can reach in one day, 2 day, 10 day, but you will definitely reach to that point. So in stock market, if you are coming, then you have to select the target. After that, we'll decide that what should be my speed. Speed का maintenance हमें ऐसा रखना है that by the car, you can understand this thing, we cannot move that car with a speed of 400 kilometer per hour. Of course, there is a limitations. 100, 90, 120, 130 is the maximum limit. If you are saying no, I have to reach to destination in 1 hour and I will move my car with 400 kilometer per hour, is it possible? No way. That is dangerous. क्यों? We are going for some convenience, we are just trying to reduce the timings, and आप कर क्या रहे हैं? You are taking much more risk. So we have to understand things clearly. That's why I asked, what is the reason, what is the purpose in entering? You both people are working well, you are already earning well, so why market is attracting you? There should be a very genuine reason behind it. Yes, sir. Initially, I think it's the fallback option or a side hustle, but and I would definitely agree that there is, we have a day job and that's working well, but you never know with the market conditions, right? Like a couple of months ago, 4% of my company was laid off because, with the AI and some of the automation and some of the ways of working meant 4% of the company was, made redundant. So there is that little bit of, I would say, insecurity with the usual day job. Like I've been here 20 years and I've been working for over 15 years, but still there's always going to be that, what if there's a gap? And if you can acquire skill, why not acquire a skill? Start slow, have flexibility as with the growing family. I've got young kids, I feel, stock trading is one area that actually gets you a bit of flexibility as well, but it requires, based on my initial understanding, a lot of discipline and psychology, equally important, I guess, with the intention to make a lot of money. So, if I were to say what my immediate goal is, I'm just thinking, well, putting the money in the bank gets us only 6.5%. Even if I can turn that to 10% or 15% a month, that's it. It's not 6%. I'll still get an interest on the bank, right? Because we have loans, and if we put the money against the home loan, we save 6%. But if I can make 10%,
consistently, or on an average, of course, it's not going to be always the bullseye each time, but if we can slowly start to go towards 10 and then 15%, then we can look at if this has got potential to you know increase that multifold. But that's not where my headspace is at the moment. I'm looking for immediate 10 to 15% based on whatever Mr. time frame. Amandeep, Mr. Amandeep, literally salute to you. Market को जो चाहिए, whatever market requires, you have that reason. Most of the people, they coming to the market, they simply say earning, पैसा चाहिए. पैसा तो है ही नहीं बाजार में. कौन कहता है पैसा है? 95% लोगों को लॉस होता है. यहाँ लोग पैसा कमाने आ रहे हैं. बट आपका जो मोटिव है that you are upgrading your skill, बिकॉज एआई है कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजीज है. अब तो यूट्यूब वाले करोड़ों कमाते हैं. हमारे टाइम में तो पढ़ पढ़ के सरकारी नौकरियां होती थी और वो सारी चीजें होती थी. तो टाइम बदल रहा है. एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइम बदलने के साथ साथ एक ऐसा बिजनेस सेटअप किया जाए, एक ऐसा बिजनेस किया जाए जो अगले 20 साल सर्वाइवल के लिए, अगले 30 साल सर्वाइवल के लिए, अगला 50 साल सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हो, सो दैट इज द राइट प्लेस. दैट इज द परफेक्ट एक्चुअली द एम. दैट इज द परफेक्ट एम. सेकेंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें, सो बेसिक जो मार्केट के पर्पस हैं आने के, वो यही है जो भी आपने बताया. दी शुड बी द पर्पसेस, है ना. तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. बट फिर भी अगर हम कुछ और चीजों को भी देखते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास डेली इनकम के भी ऑप्शन है, बिग मनी के भी ऑप्शन है. जैसे हम 10, 20, 50, 100 करोड़ की भी सोच सकते हैं बड़े आराम से. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. क्विक मनी भी है, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है. विद योर जॉब यू कैन डू दिस and you can earn simultaneously also. And passive income भी है, आप अपना काम कर रहे हैं and you have put your money in that and you can get the return of course from that. ठीक है. टेक्निकल अपग्रेड देखिए, दिस इज द टेक्निकल अपग्रेड. दैट इज द बेस्ट रीजन टू एंटर इन द मार्केट. ओके, सो व्हेन यू विल टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड करेंगे तो क्या होगा, उससे यू कैन फॉरवर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो. तो एक होता है ना कि हर पेरेंट, हर फादर का यह होता है कि कुछ मतलब दैट इज द ह्यूमन टेंडेंसी कि वट एवर एक्सपीरियंस यू हैव अर्नड, यू हैव टू फॉरवर्ड इट टू योर नेक्स्ट जेन. सो स्टॉक मार्केट एक ऐसा ऑप्शन भी है कि जहां पे आप अपनी चीजों को नेक्स्ट जनरेशन को भी फॉरवर्ड कर सकते हो. ठीक है. तो एक बात ये आती है कि ये सारे पर्पसेस जो है ये सॉल्व कैसे होंगे, व्हाट इज द राइट वे एंड हाउ टू डू दिस थिंग. क्योंकि क्या सच में यही तरीका है मार्केट का कि कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट? क्या यही तरीका है, या क्या सारी दुनिया इसी तरीके से काम करती है? नहीं. बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, पॉसिटी ऑफ नॉलेज, ये सारी चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. अब यहीं पे हम एग्जांपल देते हैं. अपने इन सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए यूजुअली हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं. इंट्राडे करते हैं कुछ लोग लॉन्ग टर्म करते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म करते हैं. जरा मुझे बताइए, इंट्राडे मतलब you are putting 1 lakh rupees or 5 lakh rupees or whatever amount you wish to put in the market, and after that suppose we are talking about 1 lakh and you are getting 2 to 5,000 per day. 2 to 5,000 per day. Per day means after putting this much of amount, you are just getting a 2 to 5,000 income on daily basis, right? Apart from that, short term is basically 5 to 7% per month, and long term you are just multiplying your capital by 100 times, 200 times, 500 times, 10 times. This is long term. I'm simply asking a question that in the general perception, what do you think? What should be the right way to move? What should be the right channelized way? What market accepts actually? क्योंकि बात यहाँ पे ये नहीं होती, मार्केट में जो भी लोग आते हैं उनको लगता है जो हम चाह रहे हैं वो मिलेगा, बट फैक्ट इज डिफरेंट. मार्केट जो चाह रही है वो आपको देगी, आप जो चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा. तो मार्केट किस चीज में कंफर्टेबल है? इज द मार्केट कंफर्टेबल इन इंट्राडे? इज द मार्केट कंफर्टेबल इन द शॉर्ट टर्म? इज द मार्केट कंफर्टेबल इन द लॉन्ग टर्म? Or for making money or completing your dreams, what should be the right way? क्या ये सही रास्ता है या ये सही रास्ता है या ये सही रास्ता है? किस रास्ते पे चल के we can just get our target done? भैया देखो,
जब हम काम शुरू कोई भी करते हो, चाहे वो ट्रेडिंग का है चाहे कोई और भी है, तो उसका मतलब लॉन्ग टर्म का मेरे हिसाब से पहले सोच लेना एक बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। तो पहले आदमी शॉर्ट टर्म या इंट्राडे सीखेगा, उसका बेसिक सीखेगा। तो जो लॉन्ग टर्म होता है ना भैया, लॉन्ग हम्म, टर्म करने वाला कोई भी बिजनेस हो, चाहे मेरा अपना बिजनेस है, उसके अंदर आपका बेस होना चाहिए पूरा, कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, कि हाँ ये जो बिजनेस है मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आपके कहने से तो हम, किसी के कहने से तो हम लॉन्ग टर्म नहीं ना कर सकते। लॉन्ग टर्म आदमी वो करेगा जिसका बेस हो इस काम में, उसको नॉलेज है कि भैया यहाँ से हमें प्रॉफिट होना ही है। ठीक है ना। तो जब बिल्कुल। हम शुरू करते हैं, नंबर वन, जब भी स्टॉक मार्केट में जितने भी आदमी आते हैं ना, 60% हमारे जैसे जो आते हैं, उनके पास, कुछ लोगों के पास टाइम होता है तो वो सीखने आ जाते हैं ना। तो हम्म, कुछ ऐसे तो, लेकिन इनके लिए इस काम के लिए बहुत सा टाइम चाहिए, बहुत सा हम्म, दिमाग चाहिए, बहुत सी, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं, आज भी मैं जीरो पे हूं। और कितना कर रहा हूं मैं थोड़ा सा भी दिखा भी नहीं सकता, कितनी बुक्स, कितनी, ये मैं, ये देखो, अभी मैं उठा नहीं सकता ऐसे ऐसे, ये देखो। ठीक है ना, ये क्या हम्म, लिखा हुआ है, ये देखो मैंने ये बुलेटिन। टारगेट लेना है। ठीक है ना, ये, तो ये काम ऐसा है, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो आप हम्म, लोग जो है, आप लोगों ने की हुई है, आप एक मुकाम पे हो। लेकिन जो हमारे जैसे आते हैं ना, उनको तो मेरे हिसाब से भैया बेसिक से इंट्राडे, शॉर्ट टर्म में करता हूं, शॉर्ट टर्म से शुरू करें। जैसे जैसे उनका फ्लो बढ़ता है, मनी बढ़ती है, तो फिर वो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में जाए। ये मेरा है, बाकी नहीं पता सही है कि मिस्टर, गलत है। मैं अभी इसको करेक्ट करूंगा सर, जो भी इसमें करेक्शंस हैं वो आई डू। मिस्टर अमन। मेरा तो जी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले मैंने थोड़ा कोई ऐसी सिमिलर कोई कोर्स या यूट्यूब और अपनी नॉलेज के हिसाब से समझा सीखा। बस वही वही मैं कह रहा हूँ, हम लोग ऐसे ही आते हैं, चलिए मैं भी हाँ ऐसे आज जी। एक बड़े ही काम की हाँ। बात बता देते हैं, बहुत काम की चीज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि आप क्या सोचते हैं। मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बोला था, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या बाजार देना चाहता है, बाजार किसको पसंद कर रहा है। ये तो आपने बताया कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, मैंने ये बोला कि बाजार किसको पसंद करता है। तो हम उसको देखते हैं कि मार्केट किसको पसंद करता है। ठीक है, हम सिंपल एक कैलकुलेशन निकाल के देख रहे हैं। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, आई होप दैट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, नजर आ रहा The initial investment we have taken, whatever we have considered, that was 1 lakh rupees only. We are simply asking for 2% a day, 2% a day. And in 5 years, we are simply saying कि मार्केट को हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मुझे मार्केट क्यों देगा, आप अकेले ट्रेडर नहीं है, देयर आर थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। जरा मार्केट को तो सबको देखना है ना, तो मार्केट अल्टीमेटली कितना पैसा देगा अपने पास से निकाल के उनको, दैट इज द अमाउंट, दैट इज द अमाउंट। मिस्टर कृष्णन, या कैन यू चेक दिस अमाउंट। हाँ हाँ, ये तो अमाउंट लिखने में तो जितना मर्जी लिख लो भैया, नहीं नहीं सर, ना ना, इसके लिए नहीं नहीं कैपेबल नहीं होना नहीं पड़ता है। नहीं 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 ये चीजें तो हम सीखी है। नहीं 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 और नहीं सर, नहीं नहीं, मेरा हम्म मतलब समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा वो हम्म मतलब नहीं है कि आप इतने बड़े बनने वाले, मेरा मतलब हम्म यहाँ पे कुछ और है। एक मतलब हम्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट को 1 लाख रुपए लगा के 2% का अगर डेली वो रिटर्न जनरेट कर ले जाते हैं आप, तो हम्म, मार्केट को आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। हाँ वहीं पे एक बंदा 1 लाख रुपए लगा के और मंथली 7 से 8% का रिटर्न निकालता है, ठीक है, तो मार्केट को हम्म उसको कितना पैसा देना पड़ेगा आप ये देखिए। तो मैं ये यहाँ पे कंसिडरेशन जो चल रहा है वो यहाँ पे ये चल रहा है, इन 10 years में कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मार्केट को जो देना पड़ेगा, वो मार्केट को इतना पैसा देना पड़ेगा, दैट इज 102 CR। मेरा कहने का मतलब समझिए, मार्केट के लिए ये पैसा देना जरूरी है या मार्केट आपको वो पैसा निकाल के देना ज्यादा ज्यादा प्रेफरेबल मार्केट के लिए क्या है, मिस्टर रामन। मेरे को बहुत अच्छे से समझ नहीं आया पवन जी। मुझे इतना पता लगा कि भी आपने दो टाइम फ्रेम्स यूज किए, या आपने कैलकुलेशन डेली निकाली है और एक मंथली हाँ, निकाली है। मैंने यहाँ और पे जो इसमें लास्ट कैलकुलेशन थी, लास्ट कैलकुलेशन में मैंने ये किया
कि इफ वी आर अर्निंग 2000 एवरी डे आउट ऑफ पुटिंग 1 लाख रुपीज, सो बाजार जी को मुझे अगले 5 सालों में कितना पैसा मुझे बाजार देगी मतलब इन अ प्रॉफिट, मुझे वो कितना पैसा ठीक है। बाजार को देना पड़ेगा। इन द सेकेंड स्लाइड वी हैव डन द सेम अमाउंट विद 8% मंथली, एंड फॉर 10 years बाजार को हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। तो बाजार दोनों में से किस मोड में ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब क्या बाजार मुझे देना मंथ ज्यादा पसंद करेगी। मंथली कम लगेगा ना, क्योंकि वैसे हाँ, तो बहुत ज्यादा अमाउंट आ रहा था। बहुत अगर ज्यादा। तो डेली आप इसका 2% की मतलब बात करें और मंथली 8। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा फीजिबल क्या है, मतलब आप मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो मार्केट के अंदर दे फेल्स, दे लूज देयर मनी, देयर आर 1000 other ways टू लूज देयर मनी, दैट इज कि मार्केट उतना अलाउ नहीं करता है। अगर मार्केट आपको उतना पैसा देगा तो उसके पास ऐसे 1000 ट्रेडर्स और हैं, अगर जो डिसिप्लिन में काम करेंगे तो मार्केट को उनको उतना पैसा देना पड़ेगा। तो मार्केट क्या करता है, दैट इज द रीजन कि जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो एक दिन प्रॉफिट करते हैं, एक दिन लॉस करते हैं, 2 दिन प्रॉफिट करते हैं, एक दिन लॉस करते हैं, क्योंकि मार्केट उनका जो ओवरऑल सम ऑफ द मनी है वो क्या करने की कोशिश करता है, रिड्यूस करने की कोशिश करता है। क्योंकि आप सिंपल एक बात समझिए, आपके पास 2 एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉय 50,000 रुपए मांग रहा है, एक एम्प्लॉय 20,000 रुपए मांग रहा है, दोनों की कैपेबिलिटी सेम है। आप खुद बताइए कि आप किसको हायर करना चाहते हैं। ये तो मुझे इतना आइडिया लग रहा है इससे कि भी डिमांड सप्लाई की गेम है, और कितना पैसा इन्वेस्टेड है और वो कैसे डिस्पर्स होता है डिपेंडिंग हाँ, ऑन, वो एक परसेंटेज पे होगा। तो इट मीन्स कि भी हर बंदे को तो अगर चाहे जितना मर्जी सब सेम ट्रेड भी लगाएं तो उतना पैसा तो नहीं मिलेगा जो वो नहीं चाह नहीं, रहे हैं, क्योंकि नहीं उतना मिलता। है ही नहीं। और देखिए मार्केट में फेलियर है। अगर आप एक बात करें कि देर आर 10 पीपल इन द मार्केट, केवल 10 लोग हैं मार्केट में, देर आर 10 पीपल ओनली। अब आप सिंपल सी बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन में बताइए कि इसमें हाउ मेनी पीपल दे लूज देयर मनी। मे बी 9 out of 10, एज बेस्ट एज आई नो, नो। एक अगर ट्रेडिंग हम में तो मोस्टली लूज ही करते हैं। हाँ सिंपल सिंपल जो है वो मिनिमम से मिनिमम अगर जनरल कैलकुलेशन भी करें तो 5 लोगों को तो पैसा खोना ही खोना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से ठीक। 3 जो है वो स्मार्ट होंगे, तो इस वजह से इनका भी पैसा वो ले जाएंगे, मतलब 80% लोगों को तो पैसा लूज करना ही पड़ेगा। 80% पीपल दे हैव टू लूज दियर मनी इन स्टॉक मार्केट, तब 20% वालों को प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब जरूरी क्या है कि हमें अपने आप को किस में रखना चाहिए, 80% में या 20% में, 20% में, दैट द स्मार्ट ट्रेडर जो मैक्सिमम टाइम पैसा लेके जाए। तो उसके लिए क्या है, एक राइट इंस्ट्रूमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर आप राइट इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप राइट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि अगर आप सपोज ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, ऑप्शंस की अलग क्राइटेरियाज हैं, आपको कौन सा सेगमेंट चूज करना चाहिए, आपको क्या थॉट प्रोसेस, मार्केट क्या देता है। ठीक है, लोगों को लगता है कि एक दिन में भी पैसा डबल हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक दिन अगर डबल कर रहा है तो अगले 3 दिन वो आपको माइनस भी करेगा। तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या इंट्राडे में हमें ये देखना है कि मार्केट की कौन सी कंडीशंस जो है वो फेवरेबल है, किस कंडीशन में हमारे पास पैसा आ सकता है। तो अगर हम बात करें दैट वी आर सिंपली applying 1 lakh invest, we have invested 1 lakh simply। ठीक है, 1 लाख हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, 10 years हमारा टाइम था। ओवरऑल अगर हम 7 to 8% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, देन विद इन 10 years जो है वी आर जस्ट गोइंग टू गेट 100 CR। द प्रॉब्लम इज दैट वी आर कीपिंग दिस, वी आर हैविंग दिस, वी आर हैविंग दिस। हमारे पास जो मेन है दैट हाउ टू जनरेट दिस 7 to 8% मंथली इनकम। बट अगर आप इंट्राडे करने की सोच रहे हैं तो इस बात को क्लियरली समझ लीजिएगा, इंट्राडे में मैंने आपको कम वर्ड्स में ये चीज पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। इंट्राडे करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। इंट्राडे के लिए ह्यूमन एरर को रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट कंसेप्ट, रिस्क एपेटाइट, देयर आर बहुत सारी चीजें हैं, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जहां पे आपको मैनेज करना पड़ेगा। पर जैसे जैसे आपका टर्म जो शॉर्ट टर्म है वो लॉन्ग टर्म में जितना जितना आपका टाइम ड्यूरेशन, इसको ऐसा सिंपल समझ सकते हैं, जैसे सपोज आपका कोई दोस्त है वो आपसे कह रहा है कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए उधार, बिल्कुल अभी दे दे, इमीडिएट, तुरंत। आप क्या बोलेंगे, भाई अभी तो नहीं, कल तक कर लूंगा। एक अगर आपका फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं मुझे 1 हफ्ते में पैसे दे दो, मुझे कुछ जरूरत है, कुछ खरीदना है। एक कह रहा है कि आप मुझे 1 मंथ में दे दो, एक कह रहा है आप मुझे 6 मंथ्स में दे दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मनी जो है वो किस केस में सबसे ज्यादा है, जिसमें आपने ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। आप उसको दे देंगे, अगर वो कह रहा है 1 महीने बाद दे दो तो आप उससे बोलोगे ठीक है नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी तो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।
बट आप उसको बोलो इमीडिएट चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है आपकी पॉकेट में नहीं है, या हो सकता है आपके अपने एक्सपेंसेस है। तो मेरा कहने का मतलब वही चीज यहाँ पे भी है, हम लोग आते मार्केट में इंट्राडे करने हैं, बट इंट्राडे में मार्केट अलाउ ही नहीं करता कि आपको हर दिन प्रॉफिट हो। और जिस जिस दिन हमें लॉस होता है, हमारा जो मेंटल लेवल होता है, जो इमोशनल लेवल होता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से आप जो लॉस हुआ होता है, उस लॉस को और बढ़ा देते हैं। ठीक है ना? तो सबसे जरूरी अगर कोई चीज है, सबसे पहला स्टेप ये है कि राइट पाथ। मैंने आपको यहां पे बोला था देर आर 4 पाथ टू रीच टू योर गोल। व्हाट पाथ यू आर सेलेक्टिंग? अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं 1000 करोड़ इंट्राडे से करने वाला हूं, इट्स डिफिकल्ट। बट अगर आप इस पाथ को चूज कर रहे हैं, या ये पाथ जो 7 to 8% रिटर्न है, ये 9% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल, व्हाट स्किल यू हैव डेवलप्ड। ठीक है, बट वहां पे एक इतनी हाई लेवल स्किल की जरूरत है, क्योंकि वहां पे केवल एक चीज नहीं है कि आपको किसी एक चीज में काम करना है, वहां पे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिस पे काम करना है। आपको एरर भी मैनेज करना है, आपको हाई लेवल बैठना भी पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे मार्केट क्या कहता है? मार्केट का एक सिंपल सा फंडा है। मार्केट ये कहता है आप जो अपना काम कर रहे हैं आप करते रहिए, आप घर बैठ के आप मुझे देखने की जरूरत नहीं है। सपोज हम अगर इंडियन शेयर्स की बात करें, टाटा मोटर्स का भाव है आज, अगर टाटा मोटर्स को 2% चलना है तो 2% चलेगा ना। आप घर बैठिए, आप दुकान में रहिए, आप ऑफिस जाइए, क्या फर्क पड़ता है? इसमें आपका रोल क्या है? आपका कोई रोल नहीं है। तो बाजार ये कहता है, बाजार मार्केट इज अ मशीन, और बेसिकली इस मशीन के अंदर आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितना पैसा डालते हैं, वो उसको क्या करता है, मल्टीप्लाई करके आपको दे देता है। तो मार्केट क्लियरली सेज कि मैं एक मशीन हूं, मुझ में रॉ मटेरियल डालने की जरूरत है, मुझ में बस केवल और केवल रॉ मटेरियल आप डाल दो एंड आई मल्टीप्लाई। आप मेरे में केवल रॉ मटेरियल डाल दो, वो रॉ मटेरियल क्या है, मनी। पुट मनी इनसाइड मी एंड आई मल्टीप्लाई। आपका टाइम नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं चाहिए, आप अपने काम को करते रहिए। दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे। और जिस टाइम पे हम ये एक रिटर्न निकाल लेते हैं या निकालना सीख जाते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की। आदमी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको 10 लाख भी इन्वेस्ट कर सकता है, 1 CR भी इन्वेस्ट कर सकता है, 10 CR भी इन्वेस्ट कर सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट इज हाउ टू जनरेट दिस। इंट्राडे इनिशियल स्टेजेस पे सजेस्टेड नहीं है, बिकॉज अगर आप लोगों ने किसी ने भी किया है, इंट्राडे में लॉसेस बहुत है। आप मार्केट में किस लिए आ रहे हैं? हैप्पीनेस के लिए ना, खुश होने के लिए, कि गेट सम मोर मनी एंड सो दैट यू कैन बी मींस अपग्रेडेड योरसेल्फ। बट अगर आप एवरीडे यू आर लूजिंग मनी, व्हाट विल हैपन? लाइक अ फ्रस्ट्रेशन। तो बाजार तो ऐसा कहता ही नहीं। अब मेरे गोयल साहब हैं, 70 ईयर्स की उनकी एज है, मेरे बगल में ही उनका ऑफिस है, उनका पोर्टफोलियो 100 CR का है, 100 CR। और आप सोच सकते हैं वो क्या बिजनेस करते हैं। उनका एक फोटो स्टूडियो है। फोटो स्टूडियो मतलब दे क्लिक द पिक्चर्स। मिस्टर अमनदीप, कैन यू इमेजिन दिस थिंग? और ये आपके आई थिंक I understand risk is very high and a lot of discipline, तो Saki, and अल्टीमेटली एज अ everything मेंटर, needs to add up. Intraday में एज अ मेंटर ultimately मुझे आपको सबसे पहली चीज क्या समझानी चाहिए? सबसे पहला यही तो समझाना चाहिए। आपके फादर भी जब आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो क्या बोलते हैं? भाई स्पीड ठीक रखना, तेज मत जाना, आराम से जाना, यही तो बोलते हैं। जी। एज अ मेंटर मुझे सबसे पहला काम जो आपको करना है वो लॉसेस से बचाना है, क्योंकि आप अगर लॉसेस से बच गए तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रॉफिट में तो दिक्कत ही नहीं है, कोई भी प्रॉफिट की तो कोई टेंशन नहीं, प्रॉफिट पॉसिबल, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे मैं इंट्राडे के अगेंस्ट नहीं हूं। इंट्राडे के लिए एक सेट ऑफ पैटर्न चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे इंट्राडे के लिए मैं काम नहीं करता। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। ये देखिए, दीज आर माय सॉफ्टवेयर, दीज आर माय स्ट्रेटेजीज, जो ऑटोमेटेड है सारी, जिसमें मुझे काम नहीं करना पड़ता। देयर इज नो ह्यूमन एरर। हाँ, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, देखिए कितनी स्ट्रेटजी, और ये सारी एक साथ रन करती है विद अ बिग फंड। ये देखिए, ये सारी देखो ये जो ऑटोमेटेड। स्टॉक मार्केट है ना, इसकी गेम एक ही है कि अपने लॉस को मैनेज प्रोटेक्ट कर, करना, और बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल, नंबर फंटेस्टिक, टू, बिल्कुल।
बिल्कुल और दूसरी बात, इंट्राडे इंट्राडे की आप बात करते हो, तो जो इंट्राडे है उसका मतलब ये नहीं है कि दिन में 3-4 आप डील करोगे। सिर्फ वीक में 3 या 4 आपकी ट्रेड होगी बिल्कुल इंट्राडे में। तीन बिल्कुल या बिल्कुल चार जो आदमी बिल्कुल बोलेगा मैं एक वीक की बात कर रहा हूँ, दिन में तो एक ऐसा भी दिन होएगा होगी ही नहीं। ठीक है। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। तो वीक में आप 3 या 4 कर लो, और सबसे वही करेक्ट। बैठ उसमें आप जब भी आप करने लगेंगे, अभी दिन में मैंने 1 2 3 कर ली, अभी मेरा पैसा गुम निकल गया, और करके देखूं वो करके, तो फिर तो आदमी बदनाम मतलब बर्बाद अब हो तो जाएगा। मैंने वही बात बोली। देखिए ठीक मैं है। दूसरी रही शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म जो है, जो मीडियम वाली है, वो सबसे बेस्ट और सेफ है बिल्कुल नए बिल्कुल आदमी के पंटा, लिए। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल शॉर्ट पंटा। टर्म में आप देख लेते हो कि हाँ भाई ये स्टॉक रेडी है, तो ठीक है इसको करो, ठीक और है। ये 2-3 दिन में हमारा प्रॉफिट निकालेगा। उसके बिल्कुल। बाद चाहे जरा ऊपर चल जाए मून पे, वो छोड़ो, जब आपको लगा कि मैं निकलना, तो निकल जाओ बस। तो ये गेम यहाँ की है कि अच्छा अपने लॉस को कैसे मैनेज करना है। और मार्केट में एक बहुत शानदार चीज और है, बहुत शानदार, इतनी शानदार चीज है दैट एवरीबडी शुड बी इन द मार्केट। मार्केट में आपको क्या लगता है, मुझे कल के बाजार में क्या होने वाला है मुझे पता है मिश्रा मंदीप? मैं, मेरा 12 साल का नहीं, एक्सपीरियंस है, 11 ईयर्स का। कोई कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, आई जब बिलीव। कोई एक्यूरेसी प्रेडिक्ट से तो नहीं, नहीं कर सकता। ये जब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मैं और आप क्या है? सेम। मेरे पास एक लेकिन आर्ट है, दैट आई रिड्यूसेस, आई कैन रिड्यूस माय लॉसेस, I can protect my losses. That is the art. That art you have to learn. But market, nobody can predict it. ये सबसे बड़ी जो ट्रांसपेरेंसी है मार्केट की, भाई कोई भी पुराना बंदा हो वो नए बंदे को एंटर नहीं करने देता। पर मार्केट में आप आना चाहते हैं एज अ न्यू कमर, बिल्कुल आइए, आपके लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटीज है जितनी मेरे लिए। बट केवल एक आर्ट सीखने की जरूरत है, दैट हाउ टू प्रोटेक्ट एंड राइट पाथ क्या है। गलत पाथ दिक्कत करेगा। अभी कृष्णन सर ने भी बताया कि बिल्कुल मीडियम टर्म करें, लॉन्ग टर्म करें, इंट्राडे करें। आपको खुद ही देखिए है क्या मार्केट में सबसे जरूरी क्या है, या किसी की नहीं चलती। जहां पे आप बाय कर रहे हैं वहां पे कोई सेल कर रहा है, क्यों भाई? आप यूएस में है, यूएस में लोग राइट चलते हैं, इंडिया में लेफ्ट चलते हैं, तो यूएस गलत है या इंडिया गलत है? सबके अपने ओन रूल्स हैं। वैसे मार्केट में हर एक की अपनी ओन स्ट्रेटजी है। आपको करना क्या चाहिए? यू मस्ट ग्रैब ऑल द पॉसिबल थिंग्स। जो भी नॉलेज है, जो भी डेटा है, वो पहले ग्रैब करिए, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी यूनिक है। सोचिए, आप इतने सारे इंडियंस को छोड़ के आप वहां पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? बिकॉज यू हैव सम कैलिबर, यू हैव सम टैलेंट। तो वो जो टैलेंट है आपके ब्रेन के अंदर, वो मार्केट में भी यूनिक है। जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं। आपको चाहिए क्या? आपको राइट डेटा चाहिए, ऑल द इंफॉर्मेशन चाहिए। जब आपके पास ऑल द इंफॉर्मेशन होती है, तो आप क्या करते हैं, उसमें से पिक कर लेते हैं, दिस वन इज राइट, ये सही है। पर मुझे हो सकता है वो गलत लगती हो, पर आपको हो सकता है वही सही लगती है। तो वो राइट इंफॉर्मेशन जो है, जब आप पिक करते हैं, मार्केट के अंदर यूनिक स्ट्रेटेजी है, उस पर ही काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर हमें मार्केट में 8 लोगों को लॉस होना है, 2 को प्रॉफिट होना है, अगर कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी होगी जिसमें 8 लोग काम कर रहे होंगे और प्रॉफिटेबल हो रहे होंगे, उस दिन मार्केट रिवर्स हो जाएगा। मतलब जिस चीज को वो सही कह रहा था कल तक, उस चीज को आज गलत कहने लगेगा। इसलिए मार्केट में यूनिकनेस बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट समथिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ आस्किंग टू समबडी एल्स। मिस्टर अमनदीप, बिल्कुल ठीक है जी, आपकी ठीक बात है। समझ तो गई। इसमें जरूरी क्या है? डेटा। इसमें से क्या करना है, मैंने आपको फिर भी एक इन जनरल बताया कि व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस। 100 CR इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अगर आप इसको 10 लाख से शुरू करते हैं तो बड़ा अमाउंट है। जरूरी है 7 to 8% कंसिस्टेंट। वो कैसे सीखा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या हम कर सकते हैं, दैट इज द अनदर पॉइंट। ठीक है, इसको हम बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम क्या 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 वेज हैं उसमें, और हम कैसे कैसे हमें उसको करना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए जो हम कंटेंट डिलीवर करते हैं आपको, वो बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस टर्म में है। बिगिनर में जो है वो हम आपको ये नॉर्मल आप ये आउट वाला भैया, द। ये छोटे वाले बड़े वाले स्क्रीन में लगाना आप, ये आप छोटे वाले स्क्रीन में आ रहे अच्छा अच्छा। हैं। हम्म, हाँ। ये बेसिकली बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है। इसमें अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं? वी आर टेलिंग ऑल पॉसिबल थिंग्स, वट एवर इज हैपनिंग इन द मार्केट, वी आर डिलीवरिंग टू यू। हम आपसे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि जो मैं करता हूं वो आप करो।
क्योंकि मार्केट में आपका यूनिक स्पेस है, जो मुझे लगता है। मैं आपसे कहूं कि नहीं आप ऐसे ऐसे काम करो एंड दिस इज द राइट वे, तो ये सही नहीं। आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं मार्केट में। तो ये जो बेसिकली है बिगिनर और इंटरमीडिएट और एडवांस, इसके अंदर जो है बिगिनर के अंदर हम आईपीओ कवर करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कवर करते हैं, इंट्राडे में क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं वो कवर करते हैं, ये सारी थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके अलावा इंटरमीडिएट में टेक्निकल एनालिसिस पूरी कवर करते हैं, और एडवांस में स्ट्रेटजी मॉड्यूल है, दैट ऑप्शन की स्ट्रेटजी क्या है, इंट्राडे की स्ट्रेटजी क्या है, इन सारी स्ट्रेटजीज को जो है वो हम कवर करते हैं। ऑप्शन के बारे में भी आप इस पूरे कोर्स में बताते हो सारा? हाँ, ये जो पूरा देखिए, ये बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, एडवांस के अंदर जो है वो हम ऑप्शन, ऑप्शन स्ट्रेटजीज, फ्यूचर, अच्छा, ये फ्यूचर स्ट्रेटजीज, तीनों फॉरेक्स। तीनों कोर्स अलग अलग है ना? ठीक है। नहीं, ओवरऑल कंबाइंड है, इसको हमने 3 पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है। ओके। हाँ, ये अल्टीमेटली हमारा जो पूरा कंप्लीट होता है वो इन 3 पार्ट्स में ही कंप्लीट होता है। दैट इज वन बिगिनर, एंड बिगिनर के बाद आपका इंटरमीडिएट एंड एडवांस। ये टोटल क्या है, दिस इज द कोर कंसेप्ट, दिस इज द कोर थ्योरी दैट वी आर डिलीवरिंग। नेचुरली वो तो सारा उसके बारे में चल आएगा। हाँ, ठीक है। इस थ्योरी के अपार्ट फ्रॉम दिस थ्योरी आपको हेल्प हो जाए, उसके लिए भी मैं अपना जो बेसिकली मेरे टूल्स एंड टिप्स हैं वो भी दे रहे हैं। इंट्राडे अगर आपको काम करना है कैश में, तो हमारी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, जैसे यूडीटीएस है, यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजीज है, पिवट बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं, ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं, जो आपको रेडीमेड मिलती हैं। आप उसको अप्लाई करें नहीं करें, दैट इज योर विश, बट इनकी एक्यूरेसी मेरे नॉलेज में हाईएस्ट एक्यूरेसी, हाईएस्ट है ना। लॉन्ग टर्म के लिए हम जो स्ट्रेटजीज आपको दे रहे हैं वो वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी है, ऑपरेटर बाइंग स्ट्रेटजी है, एंड मंथली पिवट बेस्ड स्ट्रेटजी है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, देखिए ये जो कोर्स है बेसिकली दैट इज डिजाइंड फॉर इंडियन मार्केट, सो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एल्स यू आर डूइंग इन द यूएस मार्केट और यू आर डूइंग इन द ऑस्ट्रेलियन मार्केट, तो वहां पे आप अपने क्राइटेरिया को अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, वो वहां पे सुटेबल होती है। बेसिक कंसेप्ट जो है वो वही है। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी में ओआरबी स्ट्रेटजी है, वीकली पिवट है, और एक्सपायरी स्ट्रेटजी है। हेजिंग स्ट्रेटजी जो है वो ऑप्शन स्ट्रेटजी है, जैसे आपने कैश बाय किया, एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी है कि सपोज आप जैसे 10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस 10 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको 50,000 का रेंटल आता है, वो सेम चीज आप मार्केट में भी कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ती जा रही है, आपको एक फिक्स रेंटल भी आता जा रहा है। हाउ? वो स्ट्रेटजी क्या है, हेजिंग स्ट्रेटजी में आती है कैश बाय कॉल सेल स्ट्रेटजी। इस तरह की बहुत सारी, देखिए जो लोग नए हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा, बट मेरा बताने का यहाँ पे जो पर्पज है, जो मतलब है, वो केवल और केवल ये है कि एक बंच ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो भी मैं साथ के साथ, अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट वी आर डिलीवरिंग, राइट। सो इसके अलावा फ्यूचर स्ट्रेटजी में भी है। अगर आप केवल कुछ नहीं करते हैं, अगर आप करेंसी यूएसडी फ्यूचर को भी अगर आप सेल कर देते हैं हर मंथ, तो भी आपको एक कंसिस्टेंट 6 to 7%, जितने भी मेरे बैचेस चल रहे हैं, विद इन अ मंथ दैट एवरीबडी इज रेडी टू अर्न 5 to 7% इजिली। आपको मेंटरशिप की जरूरत है, क्या करने आ रहे हैं आप मेंटरशिप में? अगर आप मेरे मेंटरशिप अगर ले रहे हैं तो उसका कोई एक पर्पस है कि मैं एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करना शुरू तो कर दूं। स्टिल यू आर लूजिंग मनी विद मी एंड बिफोर मी, सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे हुक्स, कुछ ऐसी चीजें तो आपको दे के ही भेजनी पड़ेगी, जिससे आप भाई, क्लास में क्या होता है, 10 लोग होते हैं क्लास में, 20 लोग होते हैं क्लास स्टूडेंट में, तो कोई बच्चा ऐसा होता है जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, उसको टीचर क्या कहता है, अच्छा तुम ऐसा करो, ये वाले क्वेश्चन याद कर लो। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो भी साइमल्टेनियसली वो भी दे रहे हैं। और कुछ ब्रिलियंट होते हैं, वो जो टीचर पढ़ा रहा है उससे भी ज्यादा पढ़ के आते हैं। तो सारी चीजें जो है वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें कुछ और टूल्स भी दे रहे हैं। यूडीटीएस ट्रेनर है, बेस्ट लीडिंग इंडिकेटर्स में है, हेकनेशी ऑसिलेटर है जो ऑटोमेटिक बाय और सेल सिग्नल देगा, चाहे आप किसी भी मार्केट में, आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लगा लीजिए, कनाडियन डॉलर में लगा लीजिए, कहीं पे भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूएस में भी बहुत परफेक्ट काम करता है ये हेकनेशी ऑसिलेटर। ठीक है, पैनिक वॉल्यूम फाइंडर, ये भी बहुत अच्छा, मतलब ये सारे जो हैं वो बेसिकली टूल्स हैं जो बेसिकली हम आप लोगों को दे रहे हैं। इन टूल्स के साथ साथ जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आप सीखने वाले क्या हैं या सीखने क्या जा रहे हैं। सीखने की जो सबसे जरूरी चीज है वो यही है। मार्केट में तो जो सीखना है वो तो सीखना है, बट जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी 10 इयर्स की जर्नी है, अगर आप वो एक्सपीरियंसेस ऑप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपकी वो जो जर्नी है वो शॉर्टन होकर जो है वो हार्डली 3 months 5 months की हो जाएगी। कमिटमेंट, आप मेरे से बोलें
मैं एक डेमो क्लास में आपसे ये कमिटमेंट करूं कि मैं आपको 20% मंथली दे दूंगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपको। मैंने ये कहा दिस इज द इंडिविजुअल स्किल, आई एम डिलीवरिंग कंटेंट, आई एम डिलीवरिंग माई एक्सपीरियंसेस, आई एम डिलीवरिंग एवरीथिंग, बट you have to learn the concept, you have to create your own identity। किस मार्केट में काम करना चाहते हैं, that you have to decide। क्या करना चाहते हैं, you have to decide। I can tell you what is right, what is wrong, but करना क्या है, that you will decide। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ आपकी सकते हैं। आपकी डेमो क्लास में इतनी पावर है, तो अभी आपने हमें डेमो क्लास में इतना फील करा दिया कि हम बहुत बड़े ट्रेडर है, तो आपकी क्लासें कैसी होगी? आपके साथ तो काम करना ही पड़ेगा। सर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं, देख सही बात है यार। मैं आपको एक बात, आप मैं कहाँ आपको से, आपने अपने बारे तो बताया नहीं, कहाँ से हो इंडिया से, और आप क्या किया हुआ है, कैसे हो? सर मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, और मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ, एंड आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2002, एंड आफ्टर दैट आई डिड जॉब, एंड मैं ऑस्ट्रेलिया भी रहा हूँ, मेलबर्न में भी सर आपके यहाँ। ठीक है, हार्डली 6 मंथ वहाँ मन नहीं लगा, वापस दिक्कत हुई कुछ, तो फिर वापस आ गए। वापस आके आई स्टार्टेड अगेन माय जॉब, एंड साइमल्टेनियसली मुझे हमेशा से था रईस बनना है। मेरा जो इनिशियल मार्केट में लॉस था 2009 से लेके और 2013 तक, आई एक्चुअली लॉस्ट अराउंड 1.5 CR इन द मार्केट। तो अभी हीस बन गए हो कि अभी बनना है? नहीं सर, रईस का है, मैं तो साधारण आदमी हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं, अभी आपने बोला ना कि यही आपका सपना था कि रीस बनना है, तो इस मार्केट में आगे रीस बन के आप दूसरों को सिखाओगे कि कैसे देखिए सिखाओगे? सर, इसमें कमिट नहीं कर सकता। आप किसको आप रईस कहते हैं, मैं इसको नहीं डिफाइन कर सकता। ठीक है ना, ये एक बहुत कठिन सवाल है, किसको आप रईस कहते हैं। मेरा नहीं, टारगेट जो है आपको वो, नहीं, अगर क्वेश्चन को घुमा रहे हो आप। अगर आप 10-5 करोड़ को रईस कहते हैं, तो हाँ मैं रईस हूँ। बस फिर तो ये बढ़िया बात है। पर मैं उसको नहीं मानता ना, रईसी वो नहीं होता। तो घर है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, 2 दुकानें वहां है, 2 प्लॉट वहां है, इतना पोर्टफोलियो वहां है, तो इसको मैं रईस नहीं मानता। रईसी तब होती है, मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम। मैं हाँ, वो दूसरा आंसर तो गेम। उसका है, एक दो लेकिन तीन तो वर्ड्स में दे देता हाँ। हूँ। अगर आज किसी को बोलते हैं, क्योंकि मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग का पुराना चहीता रहा हूँ कह लो, और मैंने कुछ किया भी है कुछ साल, और मैं मैक्रो फैक्टर्स में ज्यादा बिलीव करता हूँ, ट्रेडिंग कम समझता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बट मैंने मार्केट में ओवरऑल कमाया है ओवर इयर्स। Freedom of time is what I'll define as, एक्चुअली सर, what is the target. Freedom of time, when we say, is कि let's say I might be making 100,000, quarter mil, half a mil. If I can choose to not have a 9 to 5 and still be satisfied with whatever I have, जो भी हर बंदे की अपनी फैमिली लाइफ कमिटमेंट मोर्गेज जो भी, या मोर्गेज फ्री भी हो तब भी यू हैव योर एक्सपेंसेस। अगर आपके पास, आप अपने हिसाब से उठ के अपने हिसाब से दिन निकाल सकते हैं, तो उससे बड़ा रईस आदमी नहीं होना। तो किताबें हमने भी सब पढ़ी और करी, और ये देखिए चार्ट्स की, वॉरेन की, हर की पढ़ते आए। बुक का शौकीन है, मेरे पीछे लाइब्रेरी है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, ये पता नहीं, ये वीडियो मेरी बेटी का लैपटॉप है ये, अच्छा तो अच्छा, नहीं इसमें कोई कुछ कोई 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 स्कैनर बात लगा हुआ था, यू कांट सी, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। ये नहीं। पूरी हाँ पीछे इसके अंदर ये खोलूंगा तो इसमें सारी बुक्स ही बुक्स है पीछे जो ऊपर है। और स्टॉक की नहीं है ज्यादा, स्पिरिचुअलिटी की है या साइकोलॉजी की है। मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ वैसे। ओके। एनएलपी प्रैक्टिशनर समझते हैं आप? एनएलपी, एनएलपी, न्यूरोलॉजिक लिंग्विस्टिक हाँ, काइंड न्यूरो ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज ऑफ द माइंड। कि लैंग्वेज भी ऑफ द हम माइंड। लोगों के एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे शांति होनी चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए, फिर बड़ी चीजें आसान हो जाती है। तो वो लैंग्वेज ऑफ द माइंड गूगल करेंगे आ जाएगा, वो मैं पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, और हमारी टीम है, मैं उस साइकोलॉजी, अलाइड साइकोलॉजी में मेंटोर भी। बट मैं ये जानना चाह रहा था, नॉट टू डिग्रेस आई गेस, कि हम, आपने पाथ बताया स्टेप 1 2 3। मेरा रुझाव कह लो या इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स नॉट इंट्राडे। हो सकता है ये चेंज भी हो जाए, आज मैं ऐसे सोचता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हफ्ते के, जैसे कृष्ण जी आपने बोला 1 2 ट्रेड बहुत होते हैं, 1 2 5 तो बहुत ज्यादा है। 2 3 ट्रेड ही चाहिए, उसके लिए सर भले 5 एक दिन बात आप देखिए, लगाइए। सर एक बात समझ ये लीजिए, एक बात आपको और बताता हूँ। बड़ा बड़ा बड़ी काम की है, बड़ी काम की है, आपको लाइफ टाइम याद भी रखनी चाहिए। 4 तरह की फार्मिंग होती है, आप सबको फार्मिंग का पता है। एक फार्मिंग होती है जिसमें बाग बागान होते हैं। एक फार्मिंग होती है बाग,
एक फार्मिंग होती है गन्ने की खेती, गन्ना गन्ने की खेती, हाँ हाँ, करना तो क्या। ठीक है। एक 3 मंथ्स फार्मिंग होती है, 3 मंथ्स फार्मिंग राइस व्हीट, ठीक है। that is एक 1 मंथ फार्मिंग होती है, 1 मंथ फार्मिंग मतलब सब्जी, आलू, मूली। perishable. एक होती है 1 डे फार्मिंग। आपको पता है हाईएस्ट प्रॉफिट कौन अर्न करता है? 1 डे सबसे ऊपर फार्मिंग। वाला जो भी होगा। अच्छा, वन डे नहीं, वाला ज्यादा करता है, वन नहीं कर सकता। इज इट नहीं वन डे सर, वाला करता हाईएस्ट है प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म? नहीं, शॉर्ट टर्म। अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये 1 डे वाला कौन है, कौन 1 डे में करता है? 1 डे इज स्प्राउट सेलर। स्प्राउट रात भिगोता है चने और सुबह ठेली पे बेच लेता है। आपको पता है 30 रुपए किलो का चना 300 रुपए किलो बेचता है एवरी डे, 10 टाइम्स एवरी डे। बट ये फिर भी गरीब रहेगा, ठेली लगाएगा ये पूरी चीज। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे रिचनेस बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा लोअर ग्रेड 1 डे होगा। लोअर ग्रेड का मतलब आप प्लीज माइंड मत करिए, मेरा कहने का मतलब ये है प्रॉफिट इसको हाईएस्ट होगा, पर ये फिर भी इसकी कैटेगरी लोअर रहेगी। और जो सबसे हायर ग्रेड है, सबसे रईस इसमें जो है वो बाग वाला होगा। मतलब समझने की कोशिश करिए, इसके साथ रिस्क इन्वॉल्व बहुत है। चना अगर आज इसका रुक गया, अगले दिन सड़ जाएगा, इसको दोबारा लाना पड़ेगा, इसकी लिमिटेशंस है, 20 कस्टमर ही खाएंगे इसको। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी दुकान लगानी पड़ेगी, दिन भर मेहनत भी करनी पड़ेगी, बहुत सारी कुछ करनी पड़ेगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 30 रुपए का किलो चना 10 रुपए का इतना देता है वो स्प्राउट्स। मेरी गली में लगाता है, शाम को मैं ही 10 रुपए का लेता हूँ, मैं उससे यही बोलता हूँ, भाई ये 10 रुपए का इतना क्यों दे रहे हो, इतना तो सस्ता चना है। कहता है जी रोटी चलानी है। 10 टाइम्स ज्यादा कमा के, इतना हाई रिटर्न कमा के भी वो गरीब है। सिमिलरली इंट्राडे, मेरा मतलब, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट फॉर इंट्राडे। इंट्राडे मतलब आप दिहाड़ी मजदूरी करने थोड़ी ना आए, मुझे शाम को चाहिए, साफ दिन भर काम कर लिया, आप दे दीजिए मेरा। नहीं भाई, बिजनेसमैन है, बिजनेस करेंगे। बिजनेस का मतलब क्या है? ये लो पैसे, इस हफ्ते के बाद कर लेंगे हिसाब, कोई बात नहीं, 10% आ रहा है, लाओ जी 50,000 रुपए का, लाओ जी 1 लाख रुपए का। दिस कुड बी ए बिजनेस। ये थोड़ी ना शाम को दे दो, अरे आज तो मेरा ले लिया आपने, माथा सिर में दे दिया। यही करते हैं लोग। 90% पीपल आर डूइंग दिस। बिजनेस करिए। बिजनेस कैसा होता है? शानदार से माल ले आए आप, दुकान में रख दिया या कोई भी काम कर दिया, ठीक है, कस्टमर आएगा, बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की बात नहीं है कि भाई साहब ले लो जी मेरा सामान। और जो इंट्राडे है वो कहता है जी ले लो मेरा सामान, ये बेचना है मुझे। तो आप मतलब कैटेगरी को समझिए। और क्योंकि नया फील्ड हो सकता है मार्केट, तो आपको उस कैटेगरी को मैं जो है वो रिजेंबल करा रहा हूं कि कैसे कैसे आप दोनों चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो अगर इनिशियल स्टेप सही है, अगर पहला स्टेप सही है, अगर एंटर स्टेप सही है, सीड सही है जो आपके दिमाग में डल रहा है, तो जो ट्री है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। एम आई राइट? मेरा यहाँ पे ये मतलब नहीं था, ये मतलब केवल ये बताने का था कि स्टेबिलिटी वर्सेस प्रॉफिट, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, बट सेटिस्फैक्शन और लेवल ऑफ अचीवमेंट जो है वो बढ़ता जाएगा। आप एक बात बताइए, इंट्राडे में आपको 2,000 रुपए डेली आप कमाने लगे, चलिए छोड़ दीजिए, आपके पास घर मकान बेच के क्यों नहीं लगा देते आप इंट्राडे में? आपको 1 लाख रुपए पे 2,000 रुपए डेली कमा रहे हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए पे 2,000 रुपए डेली, मतलब 10 लाख पे 20,000 रुपए डेली, मतलब 1 करोड़ पे 2 लाख रुपए डेली, और मतलब 10 करोड़ पे 20 लाख रुपए डेली। लगा दीजिए ना अपना घर मकान बेच के, सारी प्रॉपर्टी सारी दुनिया की, जहां जहां हो, इंडिया में भी होगी आपकी, बेच दीजिए उसको। भैया लिमिटेशंस हो तो गई ना। इंट्राडे लिमिट का मैंने पहले आपको डेफिनेशन दी थी ना, हम्म, आप उसको गलत ले गए। दुनिया के 100% स्टॉक में जो भी आदि आप भी आते हो तो आपने भी इंट्राडे किया ही होगा। बिल्कुल किया है, मानता हूं। वॉरेन बफेट जिसका नाम बड़े बड़े, उन्होंने भी इंट्राडे किया। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो आदमी को कदम रखने के लिए होती है भैया। हाँ, देखना है कैसे कैसे आपने कैसे दूसरा ऑर्डर करना है, कैसे उसको स्टॉप लॉस लाना है, कैसे वो करना है, वो करना। आप तो पहले ऊपर लगा रहे हो। मैं एक आपको एक आंसर दिया था उसका, मैं भी शॉर्ट टर्म करता हूं। तो लेकिन जो इंट्राडे है वो जब जो भी नया आदमी आएगा नहीं जिसको पता नहीं नहीं है, सर, सर वो देखिए, इंट्राडे मेरा सबसे मेरा करेगा। मेरा मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब जिसके ये है पास कि जो पैसा भी, ही नहीं होगा हाँ वो जो भी, वो कौन लॉन्ग लॉन्ग टर्म का लेगा जिसके पास पैसा ही नहीं होगा।
पैसा नहीं है तो बाजार में काम करने की ठीक है ना। जरूरत नहीं है हाँ, सर। उसको आने पैसा की जरूरत नहीं है, नहीं, लेकिन पैसा फिर नहीं है भी तो जिसके पास पैसा होगा भी, लेकिन उसको सबसे पहले जो इंट्राडे होता है वो सीखना पड़ रहा है, क्योंकि इंट्राडे में सारा कुछ आएगा ना, टेक्निकल उसमें आएगा, फंडामेंटल उसमें आएगा, ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, सारा कुछ उसमें आएगा। उसके बाद आदमी धीरे धीरे, भैया इंट्राडे में कुछ नहीं है, लॉन्ग अभी शॉर्ट टर्म करते हैं, तो शॉर्ट मैं टर्म में कुछ तो निकाल लिया, फिर लॉन्ग टर्म करते हैं। वो दिस इज तीन द महीने सिस्टम। वो 3 महीने लगा के इस बात को कहेगा, आई एम सेइंग दिस थिंग ऑन फर्स्ट डे कि भाई इंट्राडे नहीं है, तो वो आप पहले स्किल्स को लॉन्ग समझ टर्म के में कैसे चलिए। आ जाएगा, आप पहले बताओ, लॉन्ग टर्म में पहले कैसे आ जाएगा वो? पहले जो नहीं, आदमी, एक आदमी, चलो मैं आपके पास है, मेरे को स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं है, तो क्या मैं सीधा आपके लॉन्ग टर्म में काम करने लगता हूँ? आप पहले थोड़ा इंट्राडे में मतलब हाथ आप खोल ये चाहते हैं कि करेंगे, पहले लॉस जो है वो सबसे पहले लॉस उठाना फिर चाहिए इसको, उसके आप बाद। आपके आपके आपका जो आपका वो जो कोर्स है उसके अंदर भी आपने इंट्राडे क्यों लिखाया हुआ है? उसको निकाल दो आप। नहीं, मेरा काम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है, मेरा काम आपको गाइड करना नहीं है। आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। मेरा काम ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास इंट्राडे की है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ, बस। मेरा काम तो एज अ मेंटर मुझे तो सारी चीजें बताना है, ये अच्छा है ये खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं होता कुछ भी। पर मास्टरी होने में जो है वो उसमें काफी डिफिकल्टीज है, ऐसा नहीं है। मास्टर, इंट्रा भैया इंट्रा इंट्राडे, इंट्राडे इस काम की पहली सीढ़ी है। हर आप काम की देखिए एक सीढ़ी देखिए होती है, सर, उसके बाद आप दूसरी सीढ़ी, सर मैं तीसरी आपको सीढ़ी, बताता फिर हूँ, आदमी देखिए बड़े बड़े, फिर देखिए ये आईपीओ की देखिए ये वो चलता रहता है। कृष्णन सर, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं कहता हूं कि इंट्राडे सबसे आखिरी सीढ़ी है और आप कहते हैं कि इंट्राडे सबसे पहली सीढ़ी है। ये डिफरेंसेस हैं, केवल थॉट प्रोसेस है। आप सही चलो हो सकते हैं, सीढ़ी हो तो है सकता है ना मैं आपके गलत हूं। ऊपर की, हमारी। हाँ, मैं सबसे आखिरी का, जिस दिन आई आप थिंक आई थिंक आपने पवन जी, मैंने ऐसा कृष्ण जी नहीं समझा कि वो, मेरे को लगा कि भी जैसे वो थ्योरी हर चीज कवर कर रहे हैं, हर पॉइंट्स को। और उन्होंने शुरू में एक चीज बोली जो मुझे अच्छी लगी कि भी देखो मैं तो आपको सब पढ़ा दूंगा, सब चीजें समझा दूंगा, लेकिन तुम्हारा यूनिकनेस होना बहुत जरूरी है कि आप किस में बिलीव करते हो, आप किस चीज में, और आपका एक्सपीरियंस। ये मैं इस चीज को एग्री भी करता हूँ कृष्ण जी। ये भाई इंट्रा सरदार डे जी, में जब आदमी का एक्सपीरियंस होएगा ना, समझना तो जैसे बहुत जैसे जैसे आपका शेप एक्सपीरियंस होगा। आएगा, आप खुद ही इंट्राडे को कोट कर दोगे, करेक्ट, जैसे हाँ आपका मैं भी एक्सपीरियंस यही खुद। कहने सर, लगा। हाँ, और मैंने भी किया। हाँ मैंने भी जैसे थोड़ा बहुत जो किया, और थैंकफुली लॉन्ग टर्म मुझे नेगेटिव या वो नहीं हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। प्रॉफिट और होगा, मुझे इस हमेशा चीज में प्रॉफिट। और फर्म बिलीव हुआ लॉन्ग टर्म में। आई गेस लॉन्ग टर्म मेरा ऐसा लॉन्ग टर्म ये नहीं कि कई साल से स्ट्रेट लेके बैठे हुए हैं उस पे, और वो दोबारा रिबाउंड कर गया, बट जैसे 2-3 दिन लग गए या हफ्ता भी लग गया, तो वो मेरे लिए आई डोंट नो, उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे शायद, कि भी होल्ड किया स्टॉक को, मुझे पता हाँ, था शॉर्ट बड़ा टर्म है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भी हम एक किसी स्ट्रैटेजी को, आई थिंक ये बड़ी कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन रही है पवन जी। मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि भी मेरे को आप ये बताइए कि आप इसको जर्नी कैसे रहेगी, आप सबसे पहले क्या सिखाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, और जर्नी सर इसमें हम जो है लोग वो, कब। जर्नी जो है सर जी इसमें ओवरऑल जो पैकेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं, पूरा ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स का है। जी ठीक है, 3 मंथ्स ठीक है। है। और 3 मंथ्स में जो है वो हम बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों कवर करते हैं। अपार्ट ठीक है। फ्रॉम दिस हम मैं अपनी स्ट्रेटजी भी साइमल्टेनियसली, आपको डेली का एक टेक अवे होता है हमारे यहाँ। हमारे जितने भी बैचेस हैं उसमें हम डेली एक जी टेक अवे देते हैं। डेली एक ऐसा पॉइंट देते हैं जिसपे आप जाके प्रैक्टिस करिए और सक्सेस चेक करिए उसकी। मतलब जब आप एट द एंड ऑफ द क्लास जब आप जाएंगे तो आप कुछ लेके जाएंगे कि हाँ, ये दिस इज माय टेक अवे, यू विल कीप दिस इन योर पॉकेट। वीकली कितनी क्लासें होती है? वीकली 3 क्लासेस हैं सर। ओके। 3 क्लासेस, 1.5 आवर ड्यूरेशन। 1.5। और क्लासें ऐसे ज्वाइंट होती है? ज्वाइंट ज्वाइंट होती है सर, इंडिविजुअल नहीं होती। कितने स्टूडेंट होते हैं? 3 to 4 होते हैं, पर आपके बैच को मैं अलग लेता हूँ। जितने भी एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया पीपल हैं उनको हम अलग बैच में रखने की कोशिश करते तो टाइम कैसे सेट करोगे? जैसे सरदार जी को मेरी क्लास में लेना हो, सुबह गोना हमारी, वो ऑस्ट्रेलिया में है, आप इंडिया में, मैं यूएसए में हूँ। टाइम जोन का रहेगा थोड़ा हैं। सा, टाइम जोन, ठीक एक कॉमन ये। टाइम जोन, टाइम कॉमन जोन रख लेंगे इसमें, उसको रख हम्म। सकते हैं। अल्टीमेटली देखिए सर, आपके करना यहाँ पड़ेगा। कृष्ण जी, आप कहाँ पे हैं, कौन सी जगह यूएस में, कहाँ पे? मैं यूएसए में अभी टेंसी में हूँ। मेरे पास अभी टाइम यूएसए हुआ है, तो 10, 10:30 हो गए रात साढ़े को। दस सुबह रात के हैं? हाँ, हाँ। रात के 10:30। और डेट आपके यहाँ 1, 2, 3, क्या डेट है आज? अभी एक है। अभी एक है ना, मेरे यहाँ पे 2 तारीख होगी है, और दोपहर के 1:30 बजे, अरे वाह। और संडे है। ठीक हाँ, है जी। दिन दिन रात का तो फर्क है।
ऐसा बहुत करते फर्क हैं, है। हाँ ऐसा करते हैं जी। हम लोग एक ऑप्शन ये भी चल के करके चलते हैं, हम लोग क्लासेस जो है वो वीकेंड में रखते हैं, सैटरडेज एंड संडेज। हाँ वीकेंड तो फ्री होता है। हाँ, ड्यूरेशन जो है वो मोस्ट ऑफ द क्लासेस हमारी हाँ सैटरडे मेरे संडे ही हाँ सेटल होती मेरे है। मैं बता मैं थोड़ा हुआ है मेरी ओर से। मैं तो 24 घंटे और 7 दिन घर पे रहता हूँ। कोई बाहर घर का काम ही घर का है ना मेरा। तो इसलिए मैं किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकता हूँ। कहने का बोला मैं रात दिन जब भी मेरी क्लास होगी मैं लगा सकता हूँ। काफी फ्लेक्सिबिलिटी। मेरा मेरा तो टीम है, और हाँ जैसे सरदार जी मंडे है टू इनका फ्राइडे इनका काम टाइमिंग होगा। ऑफिस। हाँ ऑफिस हाँ का तो है, वो वाइफ का प्रॉब्लम भी होती ऑफ है। काम होता है, तो बच्चों को स्कूल छोड़ना लेना सब चलता है। तो मंडे टू फ्राइडे, अदर इवनिंग लेट इवनिंग कर सकते हैं। मंडे से ठीक है चलो फ्राइडे के थोड़ा सर, सा। मंडे के फ्राइडे के बजाय हम लोग सैटरडे संडे वीकेंड रखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीकेंड में क्या है, टाइमिंग आप लोगों के साथ मैनेज हो जाएगी, क्लैश नहीं करेगी। सैटरडे संडे हाँ 2 दिन वीकली 2 दिन। हाँ, 2 दिन 2 2 आवर्स। 2 आवर टोटल 4 आवर। 4 आवर्स। तो इसके चार्जेस क्या लेते हो कैसे लेते हो? चार्जेस सर इंडिया वालों के लिए तो थोड़े कम है, पर जो यूएस से पैसा नहीं हम कमा के भी लेके इंडिया आ के ही हैं भैया। हम तो हमसे तो और भी कम लेने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको सरदार जी आप कहाँ से हो इंडिया से? मैं दिल्ली से हूँ जी। कृष्ण जी आप कहाँ नहीं से? मैं मैं जलंधर दिल्ली से। पंजाब। मैं जलंधर जलंधर से। पंजाब, ओके। मेरे मम्मा जलंधर देने। हाँ मैं दिल्ली तो वैसे अदरवाइज। हाँ हाँ। दिल्ली से। अ, मेरे को थोड़ा टाइमिंग का रहेगा, टाइमिंग का सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप पहले चार्जेस शेयर कर दीजिए पवन जी। हाँ, और चार्जेस हो सकता है कि मेरा टाइमिंग इतना क्रेजी हो कि चार्जेस मुझे। सर ये है, टोटल प्राइस जो है 35,000 है, यू कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट। दिस इज द इंडियन चार्ज। यूएस और ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए 45,000 होता है वैसे यूजुअली, इन 2 इंस्टॉलमेंट। हम्म। क्योंकि आप लोगों के बैचेस एक्चुअली जो है ना वो छोटे होते हैं, 1 लोग या 2 लोगों का होता है, तो इस वजह से हमें उसको चेंज करना पड़ता है। अदरवाइज बैचेस 4 से 5 लोगों के होते हैं। अब 4 से 5, जैसे अब अभी आप लोग का बैच जो मुझे दिख रहा है वो 2 लोगों का ही होगा, तो 2 लोगों में हमारे लिए टाइम तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता ठीक है। है ये। तो जो पेमेंट है किस कैसे लेते हो आप? पेपाल से कैसे बैंक अकाउंट कैसे भी में? कर दीजिए, मैं बैंक अकाउंट आपको सेंड कर दूंगा। 50% आप पहले कर दीजिएगा, 50% 1 महीने के बाद कर दीजिएगा, आफ्टर 1 मंथ। ठीक है। दूसरा, मिस्टर कृष्णन, बुक पढ़ना और चीजें होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो हमें बड़ा हेल्प कर देता है। जैसे ड्राइविंग में क्या है कि एक्सीलेटर दबाइए, गियर लगाइए, और वो बहुत अच्छा है, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी बहुत जरूरी है। सो वी आर एक प्रोवाइडिंग आप प्रैक्टिकल ओके अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक वी आर ठीक ठीक। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल सेशंस आल्सो साइमल्टेनियसली। प्रैक्टिकली कैसे करें, और जो भी स्ट्रेटेजी हम आपको दे रहे हैं वो ऐसा नहीं कि ये है अब आप लिख लीजिए, किताब नहीं दे रहे हैं। लाइव टेस्ट करिए, टेस्ट करने के बाद अगले दिन पूछिए कि इसमें ये दिक्कतें आ रही थी, इस सरकमस्टांस में क्या करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये करना चाहिए, आप करेंगे क्या, दैट यू विल डिसाइड। मैं मतलब आई एम इम्पार्टिंग माई एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज विद यू, बस दैट्स। मैंने क्या सीखा है वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अगर होता तो मैं ये करता। ठीक है। एंड मिस्टर कृष्णन, मैं आपको बता दूं, मार्केट में जो मेरा हाथ है वो बहुत जबरदस्त है। बहुत, मैंने पूरी क्लास में नहीं बताया, फिर भी आपको ये बताना वो तो बड़ा लगता ही जरूरी है। है। वो तो हाँ, लगता ही है। बहुत जबरदस्त है। आप मतलब ये मान लीजिए कि चीजें अलग हैं बहुत बहुत। मुझे लगता है कि हर आदमी को, क्योंकि मैंने लॉसेस झेले हैं सर, मैं शाम को फ्रस्ट्रेशन में गया हूँ, काम छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, सब छोड़ा। 2014 की बात है, 13 की। धीरे 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 मार्केट का एक सीधा सा सिद्धांत है स्टॉक मार्केट का, कि जो जिंदा रहेगा वो रईस हो जाएगा। जिंदा रहने का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि अलाइव। जिंदा रहने का मतलब है जो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करके मार्केट में टिका रहेगा वो रईस हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और मेरी ये जो 11-12 साल की टोटल जर्नी है, इसमें मैं जिंदा रहा हूँ बाजार। ठीक है, तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप भी बाजार में बस जिंदा रहो, बस और कुछ नहीं। बाकी बाजार तो भगवान है साक्षात, खुद ही पैसे दे देगा। क्या चाहिए, 100 200 500 करोड़, कौन सी मजाक बात है, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट तरीका सही होना चाहिए।
सही तरीका, एक राइट पाथ। यहाँ सही क्या है, गलत क्या है? कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। बताइए, आप एक बात समझिए, आप पूजा करते हैं अपने ईस्ट गॉड की, मैं पूजा करता हूं अपने गॉड की, तो क्या वो भी क्लैशेस नहीं? जो भी करते हैं बट मन से और दिल से करिए, दैट्स सफिशिएंट। यहाँ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ किसी तरह का कोई रूल नहीं है कि नहीं आप यही करिए, पर आप कुछ भी करिए पर वही करिए और उसको रूल वाइज डिसिप्लिन में करिए बस। तो फाइंड योर ओन ब्लूप्रिंट फॉर इट एंड गो अहेड। आपके वीकली 4 आवर है ना, वीकली 4 आवर, हाँ जी, वीकली 4 आवर्स। और टोटल आवर हो गए चार्ज कर 16 टोटल 48 आवर हो जाएंगे 3 महीनों में ना? नहीं सर, ज्यादा होंगे, इट विल बी अराउंड 67 आवर्स। ओके, 35 डिवाइडेड बाय 80, आपके बनेंगे मेरे $426 टोटल, डिवाइडेड बाय 50, आपका 8.5 डॉलर पर आवर आ रहा है ना? यूएस डॉलर सर नहीं है, आर का नहीं, उससे बहुत कम रिड्यूस प्राइस है वो तो। वो तो देखिए क्या है ना, वो तो मतलब समझिए बात को, यहाँ पे इस पर्टिकुलर। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा ना, मैं कुछ और कहने वाला था कि आपका प्राइस बहुत कम है। बहुत कम है, आई नो, प्राइस बहुत कम है, बिल्कुल है हाँ, फैक्ट। बहुत ज्यादा कम है। पर मैं बढ़ाने वाला नहीं हूँ उसको, डोंट वरी। मैं इसलिए मैं वही कैलकुलेशन कर रहा था। नहीं कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी विद इट, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माय वर्ड्स। हम्म, ठीक है, वो वही ठीक। रहेगा सर, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है ना, बिकॉज आई एम ओवरऑल जो कुछ है वो एवरीथिंग इज फाइन, मेरा काम है। आपको ये लगता है कि हाँ आपको मेरे से सीखना चाहिए, बस दिस इज इम्पोर्टेंट। और मुझे क्या डिलीवर करना है, आई नो इट वेरी वेल। कहाँ पे कब क्या चीज किस टर्न पे मुझे क्या देना है आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। मिस्टर अमनदीप सर, आप कुछ नहीं कह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ सोच ही रहा हूँ, टाइमिंग का देखना हाँ, पड़ेगा वीकेंड पे टाइमिंग भी का एक मेरे बार, लिए। हाँ टाइमिंग का एक हाँ, बार तो मैं देख लीजिए। नहीं वीकेंड वीकडे जैसा भी आप चाहते हो, मुझे कोई, मैं ये नहीं, चाह रहा हूँ कि ग्रुप जो है वो, जिनका टाइमिंग का इशू है तो वो वैसा ग्रुप हो जाए। नहीं होता है तो फिर हमारे पास देखिए तो सर अब क्या किसी है, और ग्रुप में। हाँ किसी और ग्रुप में हम आपको एनरोल करा देंगे। हाँ ठीक है ना, हाँ, तो अभी उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है ना, और उसमें ग्रुप्स ये नहीं है, इंडिविजुअल सर देखिए मैं आपको बताऊं क्लियरली, इंडिविजुअल के लिए ऑनेस्टली टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। और हमारा जो है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी चार्जेस आप दे दें, आप मुझे 2000 घंटे भी दे दें, 5000 घंटे भी दे दें, तो भी मतलब आई विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि वो डाउट्स निकल के नहीं आते। अब देखिए मिस्टर कृष्णन है, दो बातें उन्होंने भी बताई, मैंने भी सीखा उनसे कुछ चीज। तो it's very important कि that should be interactive, session should be interactive always। ठीक है, इंटरैक्टिव सेशन में हमें बड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है, ये जरूरी है। आजकल ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसका काफी क्रेज हुआ है। सबको जल्दी रईस बनना है ना सर, हाई स्पीड कार जितनी आती है सबको चाहिए होती है, फिर जिए आदमी या मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें बहुत अच्छा जवाब, सही उसमें सही बोल कुछ रहे हैं। यूएसए में तो हमारे बहुत अभी ऑप्शन में बहुत ज्यादा पर है। और आपको ऑप्शन की ऐसी स्ट्रेटेजी दे के भेजूंगा ना, बैठे बैठाए वह बैठ जाओ और पैसे आ रहा है। हम्म, बात पता है सबसे बड़ी चीज क्या, एक्सपीरियंस बहुत। आप एक बात बताइए, आप एक किसी भी चीज का आप एक्सपीरियंस ले लीजिए, आपको 10-20 साल का एक्सपीरियंस होगा, आप अपने आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे हाँ नेचुरल, किसी भी वो चीज। टाइम लगता है, टाइम लगता है टाइम इस काम, लगता है। कोई भी काम, कोई भी काम है। और बाजार के अंदर क्या होता है, 2-4 साल में आदमी बाहर आउट हो जाता है, कहता है जी नहीं है तो नहीं हो पाएगा मेरे से। हम्म। पर जो टिक, आप लोग देखिए कितने स्मार्ट हैं, आप लोग को कितना राइट तरीके से आप टीचर्स को ढूंढ रहे हैं, आप उसके एक्सपीरियंसेस को अडॉप्ट कर ले रहे हैं। मेरे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं था, मुझे जो टीचर ने बताया उसने कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सपोजर दिया ही नहीं कभी। उसने तो बस ये हम्म। बताया थोड़ा 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 थोड़ा, मैंने खुद लॉस कर करके सीखते 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 आज मैं कहता हूं आपसे, मुझे बाजार से कोई आपत्ति नहीं है किसी तरह, जितना पैसा चाहिए, जितना चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए, सब उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। ये आज मैं अपने 10 से 11 साल के स्पैन, और अगले 10 साल में उसके लिए भी आई हैव फर्दर प्लानिंग फॉर दैट। बात यहाँ पे मनी की नहीं है, बात यहाँ पे वर्क है। मैंने आपको एक बात बोली, वाई आई एम टीचिंग, उसका भी रीजन बता दूं। बाजार साफ साफ कहता है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं, आप अपना काम करो, मैं हम्म। काम कर दूंगा। तो बाजार मेरा काम कर रहा है, मैं क्या करूं? तो मैं कम से कम कुछ अच्छा कर लूं, आप लोगों को लॉसेस से बचा लूं, अपने एक्सपीरियंसेस इंपार्ट कर दूं।
बस दिस इज द थिंग। ठीक है ना ठीक है। सर, तो सेशन को क्लोज ठीक है। करते हैं फिर। आज संडे हाँ है, हैप्पी संडे। आप सो हाँ जाइए हाँ सर, जी। रात बहुत हाँ हो रही है, हम हाँ लोग तो हाँ 10 बजे सो जाते हैं। ठीक है ना सर, हाँ। और जैसा भी हो विल कम्युनिकेट ओवर द फोन। ओके, थैंक यू। ओके Thank सर, you, Pawan ji. थैंक यू वेरी Nice to मच meet you, एंड Chris. नाइस ओके, टू सदारी नाइस टू भाई, मीट सत श्री यू। अकाल। Okay ji, Sat Shri Akal. ओके, Thank you, थैंक यू Pawan. थैंक यू थैंक यू।